Hello friends, in this video we will discuss the residential status of a company. Now important point while discussing the residential status of a company is that the residential status of a company is determined based on the incorporation of that company. It means where the company was registered, where the registration was done. And the residential status of the company is defined under section 6 subsection 3 of Income Tax Act 1961. So now in residential status of a company, either a company can be proved as resident or a company can be proved as non-resident. Now when the company will be considered to be the resident, there can be two types of issues. First is a company can be Indian company. If the company is an Indian company means it is registered in India, its incorporation is in India. In that case, company will ultimately become the resident of India. Company need not prove anything. So an Indian company will always be resident under section 6 subsection 3. Now second possibility can be that is non-Indian company. It means that is a foreign company. In case of non-Indian company, we will check one condition, that how much is the turnover of that company. So turnover point is very important. If the turnover means sales of the company during the previous year, if the turnover is greater than rupees 50 crores, if the turnover is greater than rupees 50 crore, in that case we will check POEM, place of effective management of that company. Now what is the place of effective management? It means where the commercial decisions are taken, the decisions that create value for the customers, that helps in distinguishing yourself from the competitors, that drives the organizational performance. It means very crucial decisions where these decisions were taken. So if the decisions were taken any point in India, we will say the company is resident. First condition is turnover. It should be more than 50 crore. Then we will check the place of effective management of that company. If that is from India, then we will say that the company is resident. And in case the place of effective management is outside India, in that case we will say the company is non-resident. And when the turnover is less than or equal to 50 crore, then also we will say the company is non-resident. So this point is very important. For a company to be proved to be resident of India, either it should be Indian company. Indian company means registration should be from India. Then if it is a non-Indian company, if it's a foreign company, in that case we will check the turnover. अगर ये turnover 50 crore से कम है, फिर तो आपने कुछ भी चेक नहीं करना. It will ultimately become non-resident. अगर आपको क्वेश्चन में लिखा है कि टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा का अर्न हुआ, देन वी विल से उस कंपनी के डिसीजंस कहाँ हो रहे थे, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट क्या था. नाउ दिस POEM पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. बेसिकली इट टेल्स दैट द प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर वाज इन इंडिया, देन वी विल से आवर टास्क इज डन. Since the residence is to be determined every year, so every year POEM will also be checked. ऐसा नहीं है कि एक साल आपने इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया से कर दिया तो हर साल के लिए आप रेजिडेंट प्रूव हो जाएंगे. नो, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी चेक फ्रॉम ईयर टू ईयर. एंड द प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ POEM वुड बी प्राइमरीली बेस्ड ऑन द फैक्ट एज टू वेदर और नॉट द कंपनी इज engaged in active business in India or outside India. And the CBDT, that is Central Board of Direct Taxes, have released a special set of guidelines, guiding principles on 24th January 2017 related to POEM. It will depend upon case to case that whether the POEM was in India or not. So अगर उस कंपनी का place of effective management ही इंडिया के बाहर है तो भी वो कंपनी नॉन रेजिडेंट प्रूव हो जाएगी. If POEM is outside India, पहले तो वो कंपनी हमारे कंट्री की है ही नहीं, फॉरेन कंपनी है और मैनेजमेंट भी बाहर से हो रहा है, ऑफ कोर्स इट विल बी नॉन रेजिडेंट. सेकंड, अगर उसका टर्नओवर जो है लेस देन और इक्वल टू 50 करोड़ है और वो नॉन इंडियन कंपनी है, तब भी आपने उसको नॉन रेजिडेंट की कैटेगरी में डाल देना है. सो ये दो केसेस हो गए नॉन रेजिडेंट के, और रेजिडेंट के लिए इंडियन कंपनी है देन नीड नॉट सी एनीथिंग,
नॉन इंडियन कंपनी है तो उसकी टर्नओवर भी चेक करेंगे और प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट भी चेक करेंगे. नाउ इफ द कंपनी इज प्रूव टू बी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, इसके अलावा एक कंपनी के केस में ऑर्डिनरीली रेजिडेंट या नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट जैसा कोई कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता. राइट आपने या प्रूव करना है कंपनी रेजिडेंट है या प्रूव करना है कंपनी नॉन रेजिडेंट है. एक बार ये प्रूव हो गया, क्वेश्चन इज ओवर. यू नीड नॉट चेक अबाउट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट. दिस इज ऑल अबाउट द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ कंपनी. Now let us see the residential status of any other person. We have done the residential status of individual, then we have done about HUF, about the company. अब इसके अलावा जो भी person की definition जो given है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जो भी बचा, लाइक पार्टनरशिप फॉर्म, एनी एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, कोई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स हैं या कोई लोकल अथॉरिटी है, ऐसे कुछ भी पर्सन्स में से जो भी बच गया उन सब के लिए अब अप्लाई करेगा सेक्शन 6 सबसेक्शन 4. ये भी वही है जो हम पहले से कर चुके हैं, लाइक HUF. अब फॉर एनी अदर पर्सन वी विल से दैट एनी अदर पर्सन विल इंक्लूड ऑल दीज. एंड इनके लिए आपने क्या देखना है कि जैसे पार्टनरशिप फॉर्म है या AOP है या BOI है, इनका जो बिजनेस है, इफेक्टिव जो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट है वो कहाँ से हो रहा है. अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट फुली या इवन पार्शली भी इंडिया से हो रहा है, पार्शली इट इज हैपनिंग फ्रॉम इंडिया, तो इसको क्या बना देंगे हम, इट इज रेजिडेंट ऑफ इंडिया. राइट तो आपने कंट्रोल एंड मैनेजमेंट चेक करना है. पर अगर ये कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पूरा का पूरा आउटसाइड इंडिया से चल रहा है, इन दैट केस आप कह देंगे कि वो क्या है, नॉन रेजिडेंट. इसके भी दो स्टेटस हैं, या रेजिडेंट या फिर नॉन रेजिडेंट. तो इस केस में अगर आपका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली और पार्शली इंडिया से चल रहा है तो रेजिडेंट बना देंगे. अगर आपका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पूरा का पूरा ही आउटसाइड इंडिया से चल रहा है तो उसको नॉन रेजिडेंट बना देंगे. और इस केस में भी ऑर्डिनरीली रेजिडेंट जैसा कोई स्टेटस नहीं है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट जैसा कोई स्टेटस नहीं है. या तो ये सब रेजिडेंट होंगे या नॉन रेजिडेंट होंगे, इतना ही आपने प्रूव करना है. एक ये बहुत ही सिंपल सा हम क्वेश्चन भी कर लेते हैं. जैसे यहाँ गिवन है ABC कंपनी इज अ फर्म विच इज रजिस्टर्ड इन इंडिया. इंडिया की फर्म है, इंडिया में रजिस्टर्ड है. मिस्टर Z उस फर्म का सीनियर पार्टनर है एंड ही वॉज इन US फॉर 340 days ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर बिजनेस पर्पज. अब सबसे पहले चेक करोगे पार्टनरशिप फॉर्म है, तो पार्टनरशिप फॉर्म के लिए हमें क्या करना है, इसके लिए एनी अदर पर्सन वाला रूल, सेक्शन 6 सबसेक्शन 4. सेक्शन 6 सबसेक्शन 4 क्या कह रहा था, आपने देखना है कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहाँ से हो रहा है. तो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट के रिगार्डिंग कुछ नहीं गिवन. अब ये फर्म जो है इंडिया में रजिस्टर्ड है तो हम ये मान के चलेंगे कि उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट भी इंडिया से ही हो रहा है, जब तक ये कुछ और गिवन नहीं. राइट सो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट बिकॉज रजिस्ट्रेशन इंडिया की है तो ये फर्म बन गई हमारे लिए रेजिडेंट. हमने सिर्फ दो ही स्टेटस कहा था इसको मिलते हैं, ये रेजिडेंट या फिर नॉन रेजिडेंट. अगर आपका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट थोड़ा सा भी इंडिया से हो रहा है, इट विल बिकम रेजिडेंट. सो नथिंग इज गिवन, इट इज रजिस्टर्ड इन इंडिया. अब ये जो गिवन है मिस्टर J, एक पार्टनर है वो US चला गया, इट इज ऑल इमटेरियल, वी विल नॉट रिक्वायर दिस इन्फॉर्मेशन. पार्टनरशिप फॉर्म के केस में हमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा, ये हमने पढ़ा था फॉर HUF जहां पर हम कर्ता की बात करते हैं. बट पार्टनरशिप फॉर्म में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है. पार्टनरशिप फॉर्म का या रेजिडेंट स्टेटस होगा या नॉन रेजिडेंट स्टेटस होगा. सो हियर ABC कंपनी विच इज अ फर्म इज रेजिडेंट ऑफ इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ दिस प्रीवियस ईयर 2022-23. So this is all about the residential status of various persons and practical question जैसे मैंने आपको कराए हैं, more or less you will be getting the similar type of questions. Thank you.